चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि 17 लोकसभा हलकों के वोटों की गिनती के लिए 35 मराकज कायम किए गए हैं। हर असेंबली हलके के लिए 14 टेबल्स लगाए गए हैं। निजामाबाद जहां सबसे ज्यादा 185 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए निजामाबाद में वसीतर बंदोबस्त करते हुए 36 टेबल लगाए गए हैं। राय शुमारी के मराकज के करीब इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। 6000 अहलकार वोटों की गिनती में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि जुमेरात को छुट्टी रहेगी। शराब की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी रहेगी। सीईओ ने शफाफ तरीके से काउंटिंग का अमल मुकम्मल होने की यकीन दहानी कराई। आपको बताएं कि तेलंगाना में 17 सीटों के लिए 443 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल सामने आएगा। కౌంటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. హోప్ఫుల్లీ చాలా పీస్ఫుల్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ లాగా మనము కౌంటింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాము. 8 o'clockకి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. మన రాష్ట్రంలో 443 మంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. 17 పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్కి కౌంటింగ్ రేపు చేస్తాము. ఈ ప్రాసెస్ అయితే 126 కౌంటింగ్ హాల్స్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ 35 లొకేషన్స్. హైదరాబాద్లో 7 సెగ్మెంట్స్కి 7 ప్లేసెస్లో చేస్తున్నాం. సికింద్రాబాద్లో కూడా 7 సెగ్మెంట్స్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ 6 ప్లేసెస్లో చేస్తున్నాం. ఓపెన్ ది పోస్టల్ బ్యాలెట్ బాక్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్స్, క్యాండిడేట్స్, ఏజెంట్స్. Also start the ETPBS scanning. 8:20 की 8:20 EVM ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఈవీఎంస్ మేము తీసుకువస్తాము కౌంటింగ్ టేబుల్స్కి. సాధారణంగా ప్రతి హాల్లో 14 టేబుల్స్ పెడుతున్నాం. దోస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ in 2 places we have accommodated more number of tables. In Nizamabad parliamentary constituencies, we have allotted 18 tables in each hall. Prati assembly constituency ki 2 halls. Last round of EVM counting will be taken up only after completion of postal ballots and ETPBS counting. And then in front of the candidates, in front of the counting agents, and with videography of the procedure, memu one by one 5 VVPATs with 5 numbers draw chestamu. Those VVPATs will again be counted and EVMs to tally chestamu. Returning officer decision is final. No CEO cannot speak to him. It is not barred. Election Commission of India cannot interfere in this. If at all oka decision ichin tarvata dantlo porpaat aithe, there are legal recourses. Administrative action can be taken. We will go according to the law and the guidelines prescribed by the ECI. We are implementing the directions of the ECI. 6,500 members will be involved in the counting. No camera stand will be allowed to taken inside counting hall by media and journalists. That is the guideline. और वहीं लोकसभा इलेक्शन की गिनती की पेशनजर तेलंगाना पुलिस ने सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र ने कहा कि रायशुमारी के पेशनजर तेलंगाना के तमाम अजला और कमिश्नरेट्स में पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 10,000 इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं। आला पुलिस ओहदेदार राज तौर पर तमाम उमूर की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम को रायशुमारी सेंटर्स में जाने की इजाजत नहीं है। मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर से हासिल शुदा पास होने पर ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तमाम रायशुमारी सेंटर्स के आसपास पुलिस ने 1 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी है। जीतने वाले उम्मीदवारों को जुलूस या रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी చాలా ఉంటాయి అక్కడ. Only authorized persons are permitted to go inside the counting place. అది నా అందరికి విజ్ఞప్తి. ఓన్లీ ఆథరైజ్ ఉంటే మన అక్కడ కౌంటింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఎవర్ ఎలక్షన్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటే మన ఫాలో చేయాలి. ఇది మన
సెపరేట్గా ఏమీ పద్ధతి లేదు. ఓన్లీ యాజ్ పర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్ మన అందరూ పని చేయాలి. మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఇస్ డోంట్ క్యారీ యువర్ మొబైల్స్. నిజామాబాద్కి మేము ప్రత్యేకంగా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాము. అక్కడ కొన్ని ఇది ఈవీఎంస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ప్రతి పోలింగ్ లొకేషన్లో 12 ఈవీఎంస్ ఉన్నాయి. సో దానికి డెఫినెట్లీ ఎక్కువ టైం పడుతుంది. తర్వాత క్యాండిడేట్స్ కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో వారితో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెపరేట్గా మీటింగ్ పెట్టి ఏర్పాట్లు చేస్తారు. డెఫినెట్గా మేము అక్కడ స్పెషల్ బందోబస్తు చేస్తున్నాము. ఎక్స్ట్రా ఫోర్సెస్ కూడా ఇస్తున్నాము. निजामाबाद लोकसभा हल्के से 185 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। निजामाबाद लोकसभा हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर राममोहन राव ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काउंटिंग के लिए 36 टेबल्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन और निजामाबाद रूरल, आरमोर और कोटला की गिनती 8 राउंड में हो जाएगी। बोधन बालकुंडा की 7 राउंड, आरमोर की गिनती 6 राउंड में होगी। लोकसभा इलेक्शन के वोटों की गिनती कल होना है और न्यूज 18 उर्दू अपने नाज़रीन को सुबह 7 बजे से ही नताइज से मुताल्लिक पल पल की खबर दे रहा है। सबसे तेज और सबसे सही नताइज देने के लिए न्यूज 18 लगातार लाइव रिजल्ट हब के जरिए इंतखाबी जंग प्रोग्राम भी पेश कर रहा है। मौजूद हूँ इस वक्त न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब से, जहां की पल पल की तस्वीरें हम आप तक कल पहुंचाएंगे। अब सिर्फ इंतजार नताइज का है, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 उर्दू ने क्या कुछ तैयारी की है, उन तैयारियों के बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे और वो नतीजे भी सबसे सटीक होंगे। लेकिन उससे पहले अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे, जो तैयारियां लाइव रिजल्ट हब में की गई हैं वो तैयारियां क्या कुछ हैं, उसके बारे में कुछ झलकियां आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप तक हम बिल्कुल सही और सटीक नतीजे और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, मैं सीधे अपने साथी सना जो कि मैजिक वॉल पर मौजूद हैं उनके पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैजिक वॉल किस तरह से काम करता है। सना, आप मैजिक वॉल पर मौजूद हैं, किस तरह से मैजिक वॉल कल काम करेगा, जब कल इम्तिहान का दिन होगा, कल नतीजों का दिन होगा? जाहिर सी बात है, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैजिक वॉल जो है वो काफी अहम है और किसी के पास नहीं, सिर्फ न्यूज 18 के पास है, जिससे सटीक नतीजे और कितनी सीटें 2014 में किस पार्टी के पास गई थी, 2009 में क्या कुछ इक्वेशन था, ये मैजिक वॉल क्लियर करेगा। और इससे हुरैरा ये बात साफ हो जाती है कि एक ही वक्त में तमाम चीजों को नाजरीन जो है, व्यूवर्स जो है वो देख सकते हैं कि कितना रेशियो किसके पास गया है। ये काफी अहम चीज है। अब जैसे 2014 पे हम यहाँ पर हैं, फिर 2009 में गए, 2009 में किसके पास कितनी सीटें गई थी, यहाँ पर देख लीजिए यूपीए है, यूपीए के पास 248 सीटें गई थी और वोट शेयर इतना था। नहीं सना, इस मैजिक वॉल के जरिए कल न्यूज 18 अपना जादू दिखाएगा जिस वक्त नतीजे आना शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सना मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथी मुनज्जा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एलईडी पर इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। मुनज्जा मेरे साथी जुड़ी। मुनज्जा, रिजल्ट हब की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ खास है, कितना अलग है ये रिजल्ट हब? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे मुल्क में ये जो एक तरह का नंबर 1 रिजल्ट हब यहाँ पर कायम हुआ है न्यूज 18 में, और जो भी अपडेट्स रिपोर्टर्स तुरंत ही विद इन नो टाइम, एकदम रियल टाइम में जो भी लीड आते हैं, जो भी ट्रेंड है, वो सबसे पहले दर्शकों को हम अपने एलईडी के जरिए दिखाते हैं। और जो कि बेसिकली हमारे एनालिस्ट जो है तुरंत ही फोन कॉल के जरिए वहीं पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर्स किसी चैनल के जरिए, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों तक पहुंच पाता है, तो वो इस न्यूज हब के जरिए, इस लाइव हब के जरिए, रिजल्ट हब के जरिए। बहुत शुक्रिया मुनज्जा। तो आपने सुना कि 2000 से ज्यादा रिपोर्टर, इसके अलावा 150 एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल जितने भी हमारे एंकर्स होंगे वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। और नाज़रीन, खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला नलगुंडा चिटियाला मंडल के पेदा कापुर्ती में कौमी शाहराह पर एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। सुपर लग्जरी बस पलट जाने के इस हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें नारकेटपल्ली के कामनैनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज सुबह 5 बजे यह हादसा पेश आया। हैदराबाद से ये बस 4:36 पर गुंटूर के लिए रवाना हुई थी।
चलिए अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों पर नजर डालेंगे। आंध्र प्रदेश में कल सुबह वोटों की गिनती का आगाज होना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा और 175 असेंबली हलकों के लिए 11 अप्रैल को पोलिंग हुई थी। वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 36 सेंटर कायम किए गए हैं। 25,000 अमला वोटों की गिनती में हिस्सा लेगा। एक असेंबली हलके की वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल्स लगाई गई हैं। 18 से 20 राउंड में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। वोटों की गिनती के मराकज के करीब इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। जुलूस और रैलियां निकालने की इजाजत नहीं है। सीईओ ने जानकारी दी कि वीवीपैट की गिनती से नताइज के ऐलान में ताखीर का भी इम्कान है। वोटों की गिनती का अमल देर रात तक जारी रह सकता है। उन्होंने नताइज के बाद भी रीपोलिंग के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया। और वहीं रियासती वजीर पूर्ति पाटली पुल्लाराव ने कहा है कि वोटों की गिनती के लिए इंतजामात में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज के मुताबिक अव्वल दिन से ही कमीशन जानिबदारी से काम ले रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के एजेंटों के लिए बैठने का मुनासिब इंतजाम तक नहीं है। गुंटूर के नवाही इलाके नल्लापाड़ू के एक कॉलेज में गिनती मरकज का पुल्लाराव ने रुकन असेंबली जीवी अंजे ने यूलू के साथ मुआयना किया। दोनों लीडरों ने इस मौके पर कहा कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन तेलुगु देशम 110 से 130 सीटों पर ही कामयाबी हासिल करेगी। और वहीं 22 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से ईवीएम से पहले वीवीपैट के पर्चों की गिनती की मांग को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद अपोजिशन पार्टियों को झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक काउंटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि वीवीपैट की गिनती ईवीएम के बाद होगी। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने सीईसी से इस सिलसिले में खास मुलाकात की थी। एमएलसी और उराकुंडा हल्का असेंबली से तेलुगु देशम उम्मीदवार पी केशव राम ने सवाल किया कि 2 महीनों से ज़ाब्तों और अखलाकियात की बात करता आ रहा इलेक्शन कमीशन अब क्यों काउंटिंग सेंटर्स पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने आरवाकुंडा में काउंटिंग सेंटर का मुआयना किया और इंतजामी खामियों पर ऑब्जर्वर्स की तवज्जो मबसूल करवाई। इस सिलसिले में केशव ने जिले और पुलिस इंतजामिया से शिकायत की। केशव का कहना है कि काउंटिंग सेंटर में 200 अफराद बैठने की जगह होनी चाहिए, लेकिन इस सेंटर में 50 लोग भी नहीं बैठ पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल रही तो नज्म व ज़ब्त का मसला पैदा हो सकता है और ऐसा होने पर इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार रहेगा। विशाखापट्टनम शहर में बाइक सवार 2 चोर भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों भाई मरकजी सरकार के इंजीनियरिंग की डिग्रियां रखते हैं। बताया जाता है कि उनकी वालिदा ने चोरी की इन वारदातों पर अपने बेटों की हौसला अफजाई की। दोनों भाई अक्सर सुनसान इलाकों में खवातीन और खासकर बुजुर्ग खवातीन को अपना निशाना बनाया करते थे। इनके कब्जे से 1142 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया। चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं। पुलिस के मुताबिक नशे की लत का शिकार होकर उन्होंने आसानी से रुपया हासिल करने का ये तरीका इख्तियार किया। चंद्रशेखर रेड्डी और गोपीनाथ रेड्डी को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस टीमों ने 4 महीनों तक इस सिलसिले में तफ्तीश की और बिलाखिर दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। सोने की चेन छीनकर फरार होने वाली एक और सरगर्म टोली के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया। చెప్పిన ఆయన ప్రకారం 22 ఆఫెన్సెస్ సింగిల్గా చేశారు. అలాగా A2 11 కేసెస్ సింగిల్గా చేశారు. మిగతా కేసెస్ వీళ్ళు కలిసి చేశారు. ప్రాపర్టీ డిస్పోజల్లో వీళ్ళు మదర్ చాలా పెద్ద రోల్ ఉన్నాయి. మదర్ వీళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేసి ఇది పని చేయించారంటే ఆ మదర్కి కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో A3 సరోజిని సో ముగ్గురుకు అరెస్ట్ చేసి ఈ అన్ని ప్రాపర్టీస్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో 51 కేసెస్ ఇప్పటి వరకు ఆయన చెప్పిన ప్రకారం 51 కేసెస్ స్నేచింగ్ కేసెస్ హీ హాజ్ యాక్సెప్టెడ్. దానిలో 1142.50 గ్రామ్ గోల్డ్ రికవర్ చేయడం జరిగింది.
1 kg 142 గ్రామ్ 42.50 grams. ఈ 51 కేసెస్లో పోయిన గోల్డ్ 1382.90 గ్రామ్. దీంతో పాటు 5 బైక్స్ కూడా రికవర్ చేశాము. దానిలో 3 బైక్స్ ఈయన దొంగతనం చేసి దాని మీద ఈయన ఆఫెన్స్ చేసేవాడు. అలాగే 2 బైక్స్ ఈయన సొంత దగ్గర ఉన్నాయి, దాని మీద కొన్ని ఆఫెన్స్ చేశారంటే క్రైమ్ వెహికల్ కింద 5 వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. కేసు జరిగినప్పుడు रुकने असेंबली कर्नूल एसवी मोहन रेड्डी ने बताया कि 23 मई को वोटों की गिनती के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी बन जाएंगे। इस बार आम इंतखाबात में अवाम ने वाईएसआरसीपी के हक में वोट देकर चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की गलत पॉलिसीज पर उन्हें सबक सिखाया है। పరిస్థితి అర్థం కావడం లేదు. ఈరోజు ఈవీఎంల మీద వీవీప్యాట్ల మీద ఆయన కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. 2014లో ఈవీఎంలతో కదా గెలిచింది, అప్పుడు ఎందుకు ఆయన గుర్తు రాలేదు? ఉన్నటువంటి 3 కోట్ల ప్రజలు మాట్లాడడం లేదు, ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఆయనకు ఓటమి పాలవుతున్నామని స్పష్టంగా తెలిసిపోతా ఉంది. విజయం సత్యమని తెలిసిపోయింది. దాదాపు 120 నుంచి 130 సీట్లు వైఎస్ఆర్సీపీకి వస్తాయి. కాబోయే ముఖ్యమంత్రి జగన్ అని అందరూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. और वहीं तेलुगुदेशम लीडरों ने रियासत में दोबारा तेलुगुदेशम पार्टी की हुकूमत कायम होने का दावा किया। उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी को 120 सीटों पर शानदार कामयाबी हासिल होने का दावा किया। इन लीडरों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के अवाम ने हुकूमत की फलाही स्कीमात को मद्देनजर रखते हुए तेलुगुदेशम पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। కొన్ని పబ్లిక్ సర్వీసెస్ వీళ్ళైతేనేమి సర్వేలన్నీ కొన్ని ఛానల్స్ ఒక విధంగా కొన్ని ఛానల్స్ ఒక విధంగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు కొద్దిమంది మరి పగటి కళ్ళలు గంటూ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. మాకు 130 సీట్లు రాబోతా ఉన్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీలన్నీ టూలైట్ బోర్డ్స్ వేసుకోవాలి అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. టూలైట్స్ బోర్డ్స్ వేసుకోవాల్సినది వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు ప్రజల పార్టీ. आंध्र प्रदेश में आरटीसी मुलाजमीन की तंजीमों के इत्तेहाद ने 13 जून से गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ईयू और दीगर 10 मुसल्लिमा यूनियनों ने 9 मई को कॉरपोरेशन इंतजामिया को हड़ताल की नोटिस दी थी। आरटीसी एमडी सुरेंद्र बाबू से कल इन तंजीमों की बातचीत नाकाम रही। तनख्वाह बकायाजात के अलावा किराए की बसें चलाने और अमले की कटौती के फैसलों को वापस लेने का मुलाजमीन यूनियंस ने मुतालबा किया। आज मुलाजमीन तंजीमों ने विजयवाड़ा में इजलास मुनक्किद करते हुए वाज़ेह किया कि मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। इन तंजीमों के मुताबिक एनएमयू ने भी उनके साथ आने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। और चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। शुमाल मगरबी हिंद से आ रही गर्म हवाओं से आइंदा 4 दिनों में आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। 25 से 29 मई तक कुछ जगहों पर पारा 48 डिग्री के निशाने को छू सकता है, उसके पार जा सकता है। बस्ती, साहिली आंध्रा, रायलसीमा में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। मगरबी गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम, कड़प्पा और कर्नूल अजला में गर्मी और बढ़ सकती है। ज्यादातर मुकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। रायलसीमा के कुछ इलाकों में मॉनसून से कबल बारिश होने की पेशगोई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।